Yeah, hello, lovely students. How are you? I hope you all are well. Students, today we will learn chapter number 8, that is class comparing quantities. Chapter number 8 and chapter name is comparing quantities. Class is अब आपको नेम से ही पता चला होगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज मींस हम क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे. कंपेयर मींस तुलना करेंगे उनकी. ओके क्लास, नाउ क्लास कम ऑन रेशियो. So class, in the previous class, आपने पहली क्लास में we defined ratio as comparison of two quantity, comparison of two quantities in term of how many times, in term of how many times, कितनी बार comparison is possible only when comparable quantity are the same of kind. उनका क्या होती है क्लास, उनका same kind की होनी चाहिए. For example, we cannot compare height of a person with his weight. क्लास हम अपनी height और weight को compare नहीं कर सकते एक साथ. Also quantity of same kind must be in same unit. क्लास जो सेम क्वांटिटी होना चाहिए और सेम यूनिट में होना चाहिए. सपोज अगर वो मीटर में है तो हम उसको कंपेयर मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में तो हम उसको कंपेयर सेंटीमीटर में ही करेंगे. Now class, for example, we cannot compare the height of a person 6 feet with a person of height of centimeter 150 centimeter. फीट और सेंट, तो क्लास हम फीट को क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर में. तो कहने का मतलब है कि हमारी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. Now, thus, if A and B are two quantities of same kind with same unit, then the quotient 1 upon A upon B is called the ratio of a and B. The written as A ratio B, which is B dash A is to B. Class हम उसको कैसे पढ़ेंगे, A is to B. To compare two ratios, first write them as fraction and then compare according to the rule given fraction. For example, 1 is to 2 or 3 is to 5 else. तो क्लास हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे 5/2 और 6/2. हमने कैसे किया, नाउ क्लास इसके बेस से इसकी मल्टीप्लाई और इसके बेस से इसकी मल्टीप्लाई. देन क्लास हमने क्या किया, बेस को सेम बनाया. सो 6/10 इज ग्रेटर देन 5/10. सो 3/3:5 is greater than 1:2. Ratio is in its simplest form. Thus, ratio A is to B is said to be in the simplest form if HCF is of A and B is 1. For example, ratio 2:3 in simplest form 2 and 3 have no common factor other than 1. So simplest form क्या होगी इनकी, यही होगी. Now class, proportion, if two ratio A and B, A is to B and C is to D are equal or equivalent, then four numbers A, B, C and D are said to be in proportion, and we write A is to B proportion C is to D. So class, A is to B is equal to C is to D. Okay class, A is to B is equal to C is to D. When we observe some proportion number, we get an intersecting fact. 20, 60, 40 and 120 are in proportion. Class, this is, so class ये क्या होगा, class same है. Understand? Here are the first, second, third and fourth terms of the proportion respectively. The first and fourth terms are called extreme term. क्या class क्या कहते हैं उनको, extreme term, while second and third terms are called the middle terms. First and fourth को extreme term and second and third को middle terms. Thus we conclude that if four numbers are in proportion, then the product of extremes is equal to the product of means. A is to B is equal to C is to D if and only if AD is equal to BC. Continued proportion class, three quantities are said to continued proportion if the ratio of the first to the second is equal to the ratio of the second to the third. In general, A, B, C are said to be in continued proportion if A is to B is equal to B is to C. We know that for every proportion, product of means is equal to product of extremes. B is to B multiplied by B, A multiplied by C और B की power 2 भी लिख सकते हैं हम उसको, A is equal to AC. Thus, if A, B and C are in continued proportion, then class क्या होगा, B square AC. B is known as mean proportional, while C is known as third proportional. Come on class. Example number 1, express 24:25 in its simplest form. Class उसको हम जो common factor होगा उससे divide कर देंगे, that is class 8/15. Hence class this is. Example number 2, class find the ratio in kilometer और meter. Class हमें किलोमीटर को पहले चेंज करना होगा मीटर में, देन हम उस रेशियो को फाइंड कर लेंगे. मैंने क्या बताया था, यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. Now divide 126 into pair in the ratio of this. Now class पहले हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे. सो क्लास जिसका क्या होता है रेशियो, क्लास हमने उसको पहले सम ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो, क्लास हम उसको ऐड किया, देन हमने उसको डिवाइड कर दिया 28 और 98. ओके. एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द 5 इक्विवेलेंट रेशियो 2:3. क्लास हम उसको कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 4 2 से
और 3। ये क्लास आपके अलग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम ही होंगे, दे कैन बी डिफरेंट। नाउ क्लास एग्जांपल नंबर 5, कंपेयर द रेशियो 4:9 एंड 5:7। तो क्लास हमने कंपेयर कैसे करेंगे, हम उसको बेस को सेम बनाएंगे पहले, देन हम उसको कंपेयर करेंगे। अंडरस्टैंड। एग्जांपल नंबर 3, 40, 48, 40, 30 और x। क्लास हमने क्या किया, 40 इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो क्लास 48 क्या होगा, नीचे 40 मल्टीप्लाई बाय 30, हमने इसको डिडक्ट किया, दैट इज सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हुआ, x इज इक्वल टू 25। नाउ आर देन क्वांटिटेटिव प्रोपोर्शन। क्लास क्वांटिटेटिव प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर 27, 18 और 12। तो क्लास क्वांटिटेटिव प्रोपोर्शन क्या होगा, 27 to 18, 18 is to 12। तो क्लास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो क्लास यस, दोनों का क्या है, सेम है। तो हेंस दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। पहले हमने इन दोनों को लिया, देन हमने इन दोनों को लिया। Example number 8, in computer lab there are 6 computers for every 6 students. So how many computers are need to for 24 students? Class 6 students require 3 computers, 1 student requires, so class 1 by 2. So class 24, 3 multiplied by 24.6, so class 12 computers. Come on exercise 8.1, question number 1, find the ratio of the following। class ये सेंटीमीटर में और मीटर में है, तो क्लास में इन दोनों को ही सेंटीमीटर में कर लेती हूँ, दैट इज 500। तो क्लास 0 से 0, 5 2 1 जा 2 और 25। अंडरस्टैंड। नाउ क्लास अगेन ये मिनट्स में और ये आवर्स में है, तो क्लास 300 इज टू 360 मिनट्स। ओके क्लास, क्योंकि हमें पता है हमने क्या किया, 6 की मल्टीप्लाई किससे कर दी, 60 से। तो क्लास 0 से 0, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। So 5:6 is the required ratio. Rest of the parts do yourself. Come on, question number 2, compare the following ratios। क्लास हम इसको कंपेयर करते हैं, 3:5 और 7:9। क्लास इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 9 से, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से करेंगे। क्लास 3 9 जा 27, 45, 35 अपॉन 45। तो क्लास 3:5 से क्या बड़ा है, 7:9 बड़ा है। अंडरस्टैंड क्लास। नाउ rest of the parts do yourself। come on, question number 3, express the following ratios in the simplest form। क्लास अब आप यहीं पर देख सकते हैं, 15 3s are 45, 15 5s are 75। अंडरस्टैंड क्लास, 41s are 40, 43s are 120। अंडरस्टैंड क्लास, 16 2s are 32, 16 3s are 48। okay class, come on, question number 4, find the value of a in the following proportions। class, तो क्लास ओके, यस क्लास। तो क्लास a इंटू 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 20। तो क्लास a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 5। ओके क्लास, यस क्लास, a इज इक्वल टू 5 4 जार 20, तो 3 4 जार 12। a की वैल्यू क्या हो गई क्लास, यहाँ पर 12 हो गई हमारी a की वैल्यू। यस क्लास, रेस्ट ऑफ द पार्ट डू योरसेल्फ। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड 721 मार्बल्स बिटवीन राजू एंड मोनू इन द रेशियो ऑफ 4:3। क्लास राजू को हमें देना और मोनू को। राजू, तो क्लास पहले हम उनका सम कर लेंगे रेशियोज का। क्लास जो है 4:3 का सम है क्लास 7। तो क्लास 4/7 मल्टीप्लाई बाय 721। नाउ क्लास 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। सो क्लास 412 किसके हुए, राजू के। अब हमें मोनू के निकालने। क्लास 3/7 मल्टीप्लाई, यस क्लास 721 क्या होगा, 103। तो क्लास 3 3 जार 9 0। तो क्लास 309 किसके हुए, मोनू के हुए। क्या हुए, मार्बल। Now class, rest of the questions do yourself। come on, percentage class। percentage is a commonly used to calculate interest rate, cost, price, profit, etc। class किसका यूज करते हैं हम, इसमें इन सभी को निकालने के लिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं।
तो परसेंटेज इज कॉमनली यूज टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट यूज करने के लिए, इंटरेस्ट रेट्स, कॉस्ट, प्राइस, प्रॉफिट, परसेंटेज के द्वारा हम उसको फाइंड करते हैं. अ रेशियो ऑफ अ नंबर 200 इज कॉल्ड परसेंटेज. परसेंटेज इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम. ओके, लैटिन वर्ड परसेंटम वर्ड से लिया गया है परसेंटेज, दैट मीन्स पर 100 एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ दिस, दैट इज 1% means out of 100. A percentage is also defined as a fraction whose denominator is 100. A percent is written as a number with the symbol of this. For example, 18%. So 1 upon 2%. 18% or 1 upon 2%, etc. Converting fraction into percentage. To convert a fraction into percentage, multiply the given fraction by the 100 and put the symbol of percentage, or express the following with the 100 as denominator like this. कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन क्लास, उसको हम 100 से अगेन तो फ्रैक्शन में हम उसको चेंज कर सकते हैं. नाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज, अगेन परसेंट 100 से डिवाइड करेंगे, उसको डेसिमल में मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू रेशनल इनटू रेशियो, तो क्लास इसका रेशियो क्या होगा, 1 अपॉन 400. सो 1:400. इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज क्लास, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओरिजिनल और इनिशियल अमाउंट. प्लस ओरिजिनल और इनिशियल. ओरिजिनल मीन जो शुरुआत वाली, इनिशियल मीन शुरुआत वाली जो उसकी अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ चेंज. ओरिजिनल अमाउंट की मल्टीप्लाई 100 से, तो हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी. परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट ऑफ चेंज और अमाउंट रियल अमाउंट इनटू 100. एग्जांपल नंबर 1, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से. एग्जांपल नंबर 2, फाइंड 25% ऑफ 1800. अगेन क्लास उसको करेंगे, 25% है तो परसेंट का क्या हो जाएगा, 100 एंड फाइंड आउट कर देंगे अपनी वैल्यूज. Come on, example number 3. The strength of a school is 2000. If 40% are girls, find the number of girls and boys in this class. 2000 में से क्लास 40% क्या है, हमने 40% निकाला 800. Now class 200, 2000 में से 800 को माइनस किया, so rest of the boys. Come on, exercise 18.2. Question number 1. Express each of the following as a fraction in its simplest form. Yes, class. Look here. Now 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 5s are 10, 0. 2 1s are 2, 2 8s are 16, 25. Now class यहाँ पर होगा 18 अपॉन 250. क्या होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, अभी नहीं क्लास, सी. 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10. Now class 9 upon 125 क्या होगी क्लास, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी. Now B part is 115 divided by 100 class, that is 2. अब क्लास C यहाँ पर 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 2 doesn't 0, 5 5 से 25, 5 4 से 20. क्लास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 4/5/4. Rest of the parts do yourself. Come on, question number 2. Convert the following percentage into decimal. क्लास डेसिमल में हम उसको कन्वर्ट करना है. तो क्लास ये क्या हो गई यहाँ पर 1000. सो क्लास क्या हो जाएगी ये 0.064. अंडरस्टैंड क्लास. अब यहाँ पर 15 2 से 30, 31 अपॉन 200. ओके क्लास. तो अब हमने उसको, यस क्लास, अब हम 31 को डिवाइड करते हैं 2 से. 2 1s are 2. नाउ 2 5s are 10. तो क्लास पॉइंट लगा के 0, 2 5s are 10. तो क्लास 15.5. तो क्लास हमने इसको डिवाइड किया 15.5 आया. अब यहाँ पर हमारे पास पहले से ही 0 है 2. तो क्लास ये क्या हो जाएगा 0.15.5. Understand class? Rest of the parts do yourself. Come on, question number 3. Express each of the following as a percent. अब क्लास परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से. क्लास हो जाएगा 225%. प्लस ये होगा 8 to 8.25%. Understand? Rest of the parts do yourself. Come on, question number 4. Convert each of the ratio as percentage class. यस क्लास, हमें कन्वर्ट करना है इस रेशियो को परसेंट में. सो क्लास 70%, और ये क्या होगा क्लास 30%, क्लास 11%, 9%, 110% और 90%. अंडरस्टैंड क्लास? टेस्ट ऑफ द पार्ट्स डू योरसेल्फ.
कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5 क्लास फाइंड करना है इसको हमें। नाउ क्लास सी ए पार्ट। तो क्लास हम इसको 11/2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 एंड मल्टीप्लाई 750। तो क्लास 0 से 0 कैंसिल आउट, अंडरस्टैंड। 5 2 जार, नाउ क्लास 5 2 से 10, 5 1 से 5, 5 5 जार 25। नाउ क्लास क्या होगा इसका आंसर? अब यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 15, तो क्लास 11 मल्टीप्लाई बाय 15 165 by 4, understand class? Now class C B part, 75% multiply by 600। तो क्लास 0 से 0, 75 क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्लास 450 meters। ओके क्लास? Yes class, A and B part is done, rest of the parts do yourself। Come on question number 6, what percent is rupees 2 of 40 rupees? Yes class, what percent is 2 रुपीज ऑफ किसका क्लास? 40 का कितने परसेंट है? 2 रुपीज। तो क्लास ये हो गया 40x अपॉन 100 इक्वल टू 2। क्लास x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40। 0 क्लास 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। क्लास कितना होगा क्लास x का? 5%। 2 रुपीज 40 का कितना होगा क्लास? 5%। नाउ क्लास rest of the parts do yourself। Come on question number 7, Ali was drawing a salary of 75% per month। now class his salary increased हो गई इतने per month, find the percentage increase in salary। now class yes class, अली की जो सैलरी इंक्रीज हुई है, अली सैलरी, तो क्लास कितनी इंक्रीज हुई है? पहले कितनी थी? पहले थी, अब उसकी क्लास 90,000 हो गई, और पहले कितनी थी उसकी सैलरी? 75,000। तो क्लास क्लास उसकी सैलरी बढ़ी है 15,000। तो क्लास हमारे पास एक फॉर्मूला था अमाउंटिंग चेंज, तो क्लास 15,000 चेंज हुई है अपॉन एक्चुअल वैल्यू और रियल वैल्यू। तो क्लास कितनी है? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। हमें क्या बताना है? उसका परसेंट बताना है, कितनी परसेंट उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है। तो क्लास 30 30 25 3 जार 75, 4 जार 100, 3 5 जार 15, now 4 5 4 जार 4 5 जार 20। सो क्लास उसकी सैलरी बढ़ी है 20%, 25% इंक्रीज हुई है उसकी वैल्यू। क्या हो गई? 20% इंक्रीज हो गई उसकी सैलरी, किसकी? अली की। यस क्लास, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन डू योरसेल्फ। कम ऑन प्रॉफिट एंड लॉस क्लास। Peter, the shopkeeper of a chocolate store, buys articles from the wholesaler and sells them to the customers। क्लास वो होलसेलर से वो अपनी चॉकलेट जो भी उसके सामान वो शॉप पे रखता है वो खरीदता है और अपने कस्टमर्स को वो सामान दे देता है, बेच देता है, सेल कर देता है। द प्राइस एट विच द शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल, जो हमने जिस आर्टिकल को हमने जिस प्राइस पर खरीदा वो क्या होता है? हमारा सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, और जिसपे हमने वो आर्टिकल बेचा वो क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी। So case 1, if SP is greater than CP, this implies that the sale is profitable and profit is equal to SP minus CP। और जब loss होता है CP minus SP। Profit and loss in percentage class, both profit and loss can be expressed using percentage class। Profit is equal to profit upon cost price और loss is equal to loss upon cost price। Come on example number 1, a shopkeeper bought a cycle for 2,800 and sold it a customer to 2,940 rupees। अब क्लास खरीदी इतनी की थी और बेची इतनी की, तो क्लास उसने ज्यादा की बेची मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ है, तो एसपी माइनस सीपी 140 रुपीज को प्रॉफिट हुआ है। नाउ फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्लास सीपी इतना है और एसपी इतना है, सो क्लास हमारे पास एसपी ज्यादा है तो हमारे पास क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, जितने का प्रॉफिट हुआ है अपॉन CP multiplied by 100, that is 25%। Example number 3, a dealer suffers a loss of 5,000 by selling an item
फॉर 15,000 फाइंड द लॉस परसेंटेज। क्लास उसको लॉस हुआ है 5,000 का, तो एसपी इज इक्वल टू लॉस, हमने उसमें ऐड किया 20,000 में, वो मतलब बेची उसने। सीपी कितना हुआ क्लास, बेची 15,000 में, लॉस कितना हुआ उसको 5,000 का, मीन्स उसने खरीदी कितने में होगी 20,000 में, तो हमने उसका लॉस अपॉन सीपी निकाला, दैट इज 25% लॉस हुआ उसको। कम ऑन एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्लास सीपी हमारे पास इतना है, एसपी निकालना और प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है क्लास। तो सीपी प्लस प्रॉफिट, तो क्लास 190 प्लस 45 प्लस 235 क्या होगा क्लास, 235। अंडरस्टैंड क्लास। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा क्लास, प्रॉफिट हुआ है हमारे पास, तो क्लास हम लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। सो क्लास प्रॉफिट हुआ है 45 अपॉन 190 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो। यस क्लास, अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे। सो क्लास आएगा 2313/19। अंडरस्टैंड। सो क्लास प्रॉफिट परसेंट हुई 2313/19%। अंडरस्टैंड क्लास। कम ऑन डी पार्ट 120 क्लास सीपी है और हमारे पास लॉस हुआ है। सो क्लास हमारे पास लॉस हुआ है 20 रुपीज का, तो क्लास 100 रुपीज में हमने उसे बेची होगी। अंडरस्टैंड। प्रॉफिट तो हमारे पास हुआ ही नहीं, तो लॉस परसेंटेज क्या क्लास होगी, लॉस 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से हमने जीरो को डिडक्ट किया, 2 6 are 12, 2 5 are 10। अंडरस्टैंड। नाउ 2 1 are 2, 0, 2 3 are 6। नाउ क्लास 50 अपॉन, यस 50 अपॉन 3, तो क्लास 3 1 are 3, नाउ 3 6 are 18, फिर क्लास यही चलता रहेगा। सो 16 2/3% क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। अंडरस्टैंड क्लास। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डू योरसेल्फ। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अ वेंडर सेल्स अ डॉल, कितने रुपीस की इसने बेची, 105 की, और ही हैज अ प्रॉफिट 5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डॉल। क्लास इसमें 5% का उसका क्या हुआ है, वो प्रॉफिट हुआ है। तो क्लास सेलिंग प्राइस क्या है क्लास डोल का, दैट इज 105। प्रॉफिट कितना हुआ है क्लास उस पर, 105 का 5% उसको प्रॉफिट हुआ है। तो क्लास 2 ज़ा 10 और 0, नाउ क्लास 5 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, नाउ 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 21 अपॉन 4 क्या हुआ क्लास, उसको प्रॉफिट हुआ है। नाउ क्लास हमें सीपी निकालना है, सीपी के लिए सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सो क्लास 105 माइनस 21 अपॉन 4, सो क्लास 21 अपॉन 4 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 21 को 4 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, 5 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो क्लास 4 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, नाउ 2 पॉइंट ला के 0, 4 5 ज़ा 20। नाउ क्लास 105 माइनस 5.25, सो क्लास अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज का क्या है हमारा सीपी है। अंडरस्टैंड क्लास। Yes, class. Come on, question number 3. A seller bought an article 1500. क्लास कितने पे खरीदा, सीपी कितना हुआ 1500 का, और बेच दिया कितने रुपए का, तो हमें क्लास प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है उसकी। तो क्लास हम पहले प्रॉफिट को ही फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो क्लास 6 4 546। हमें तो क्लास प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 546 अपॉन सीपी 1500 का है क्लास इंटू 100, तो क्लास 0 0। अंडरस्टैंड क्लास। 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, 3 3 जार 3 2 जार 6 क्लास 3 2 जार 6। तो क्लास हम 182 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, 5 3 जार 15, तो क्लास 5 6 जार 30, नाउ पॉइंट ला के 0, 5 4 जार 20, तो क्लास प्रॉफिट परसेंटेज हुई 36.4%। अंडरस्टैंड क्लास। या फिर आप उसको क्लास ऐसे भी लग सकते थे, 36.25%
Understand class? Now class, rest of the questions do yourself come on simple interest. If a person borrows some money from a lender and makes a promise to return after a certain period of time, plus जब कोई इंसान अपने लिए पैसे को बोरो करता है, उसको उधार लेता है और वो वायदा करता है, उस बात का प्रॉमिस करता है कि वो कुछ टाइम के बाद, सर्टेन टाइम के बाद उस मनी को वो रिटर्न कर देगा, तो क्लास देन ही बोरो नॉट ओनली पेज द अमाउंट, क्लास देन द बोरर नॉट ओनली पेज द अमाउंट, क्लास जिसने वो लिया है वो अमाउंट ही पे नहीं करेगा, ही हैज बोरोड बट सम एडिशनल मनी ऑल्सो फॉर यूजिंग द लेंडर्स मनी, क्लास वो अगर सपोज उसने 2000 रुपए लिए हैं, तो क्लास उसने कुछ इंटरेस्ट के साथ उसको दिए होंगे, तो क्लास वो 2000 तो देगा, लेकिन उसका 10%, 12%, 8%, 4% जो उसने ब्याज लगाया, इंटरेस्ट लगाया, वो उसके साथ उस मनी लेंडर को देगा, जो भी मनी उसने उससे बोरो की है। तो क्लास प्रिंसिपल, the money borrowed from the money lender or bank is called the principal or sum. It is denoted by the P. Time period class, time in which the borrower promised to return the money back. जो टाइम वो कह रहा है कि मैं इस टाइम में 2 साल में, 3 साल में, 6 महीने में, 4 दिन में, जिसमें मैं अपने मनी को रिटर्न कर दूंगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? टाइम इट इज डिनोटेड बाय टी. रेट ऑफ इंटरेस्ट द परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल अर्न्ड बाय और पेड बाय ईयर इज कॉल्ड एनुअल इंटरेस्ट. जिस भी एनुअल इंटरेस्ट पे वो कह रहा है कि मैं इतने इंटरेस्ट पे तुम्हें वो मनी दूंगा और उसी इंटरेस्ट के साथ मुझे वो मनी आपको वापस करनी होगी विद द आफ्टर द सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड. ओके क्लास, इट इज रिटन एज 8% पर ईयर और पर एनम. अब क्लास इंटरेस्ट द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर, जो इंटरेस्ट जो एडिशनल मनी वो देगा, तो क्लास वो हमारी इंटरेस्ट होती है फॉर यूजिंग द लेंडर्स मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट. इट इज डिनोटेड बाय आई. इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली, uniformly means equal class, on the principal thought out the given period of time, then the interest calculated is called simple interest, abbreviated as SI. Now class, क्या फॉर्मूला होगा? P into R into upon 100, simple interest. Sum of a class amount, the sum of principal and simple interest is known as the amount. Amount is equal to principal plus simple interest. Example 1, Salman deposit rupees 10,300 in ABC Bank for 3 years, class rate of 6%. अब क्लास उसने, अब उसका जो हमने उसको सॉल्व आउट किया, पी की जगह आर की जगह टी की वैल्यू रखी, तो उसकी वैल्यू आई 1854. अंडरस्टैंड क्लास? द अमाउंट दैट सलमान विल रिसीव, अब उसको कितनी मनी रिसीव होगी क्लास, उसमें ये वाली अमाउंट क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. अंडरस्टैंड क्लास? कम ऑन एग्जाम्पल नंबर 2, रमन डिपॉजिट अ सम ऑफ इतने, रेट ऑफ इतने पर एन, हाउ लॉन्ग विल टेक टू बी 32,000. तो क्लास ए हमारा 32,000 हो गया, आर हमारा 7% हो गया. सपोज द टाइम इज टी ईयर्स, तो क्लास एसआई क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 3500. नाउ क्लास टाइम क्या होगा? एसआई 100 इंटू एसआई अपॉन पी इंटू आर, सो क्लास क्या होगा? 143 अपॉन 57 ईयर्स. कम ऑन एक्सरसाइज 8.4 क्लास, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अमाउंट एंड इंटरेस्ट. तो क्लास हमारे पास है अमाउंट है 25%, 2500, 10.5 एंड 2 ईयर्स अपॉन 100. नाउ उसको 110 हो गया क्लास, 0 से 0, 5 2 से 10, 2 से 2 डिडक्ट हुआ, दैट इज क्लास 25 रुपीज. अंडरस्टैंड क्लास? रेस्ट ऑफ द पार्ट डू योरसेल्फ. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मेनी इयर्स विल 20,000 अमाउंट बी 3,000 एट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. सी क्लास क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, अब क्लास पी हमारे पास है 20,000, ए हमारे पास है 23,000, तो क्लास हम इससे सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं. 23,000 माइनस 20,000, तो क्लास क्या है? 3,000 का हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया. अब क्लास हमें क्या फाइंड करना है? हमें टाइम फाइंड करना है. तो क्लास टाइम का फॉर्मूला था 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट 3,000 एंड P into R. So class P हमारे पास है 20,000 एंड R हमारे पास 5%. 30 से 30 कैंसिल आउट. नाउ क्लास 0 से 0, 5 2 से 10, सो 2 से 2 कैंसिल आउट. तो क्लास टाइम हो गया हमारा 3 इयर्स. टाइम हो गया हमारा 3 इयर्स. अंडरस्टैंड क्लास? यस क्लास. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डू योरसेल्फ क्लास. Now class, your chapter is completed. I hope this chapter is clear to you. Now prepare it very well and we will meet you in next class. Thank you.